Hi everyone, welcome to EduTap. So with a lot of news being floated around के सेबी का notification दिसंबर और जैन में आ सकता है. Now a lot of people are asking के can सेबी be cleared if we start now? Is सेबी graded tough or it can be managed? Are the subjects too technical or it can be understood? So इसी चीज के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. But before that I want to tell you one thing that जो भी सेबी ग्रेड ए की नोटिफिकेशन को लेकर डेट्स बताई जा रही हैं, they are though based on internal information, but there is still not 100% confirmation that it is going to come. ठीक है, तो एक रिस्क तो आपका रहेगा ही. I would still say that it is 60-40 और 70-30 के नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, in the favor of आएगा, right? But you never know with SEBI. They themselves are not clear that whether they want to recruit and if yes, how many they want to recruit. But ये एक चीज है. दूसरी चीज ये भी है कि अगर नोटिफिकेशन आता है, आई मीन द ओनली चांस यू वुड हैव टू क्लियर द एग्जाम और द पीपल हु वुड हैव बेस्ट चांस टू क्लियर द एग्जाम वुड बी द वंस हु वुड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड नाउ और से विद इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद इतना टाइम नहीं रहता है. सो रिस्क है, बट द कॉल इज योर्स. तो सबसे पहले मेन ही क्वेश्चन पे चलते हैं कि इज सेबी ग्रेड ए एग्जाम रियली टफ? नाउ सी, सेबी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रेगुलेटरी बॉडी. मैं बोलूंगा आरबीआई से भी पावरफुल है एक सेंस में, because RBI is kind of regulating the banking sector, but SEBI even individuals, मतलब brokers, ठीक है, या फिर प्राइवेट कंपनीज, उनको भी बहुत हैवी फाइन्स लगाता है, बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट करता है. सो बोथ हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस. मतलब सेबी के पास भी बहुत ज्यादा पावर्स हैं. रिसेंटली सेबी फाइंड वन इंडिविजुअल हु वाज रनिंग अ यूट्यूब चैनल विद 17.2 crore फाइन बिकॉज ही वाज नॉट रजिस्टर्ड with SEBI, but he was selling his tips to the investors. तो ऐसे SEBI के पास काफी powers है. Now the point I'm trying to make is that SEBI is so much powerful regulatory body in the domain of capital markets that obviously the selection is not going to be easy. तो यहाँ पे बहुत clear है कि ये selection is not going to be easy. Like lot of aspiring candidates would be vying for this job and they would be ready to give their 100%. So easy तो नहीं होने वाला है, but is it tough? So इसका आंसर I would say yes and no. That depends on lot of factors. Yes, it is tough if I would say that कि ठीक है भैया, इस एग्जाम में बहुत सारे CAs इस एग्जाम को क्लियर करते हैं क्योंकि उनको शायद थोड़ा एक नेचुरल एज रहता है, because there are some subjects which are in their domain, though there are many subjects which are in their domain which are not in their domain also. बट सीएस निकलते हैं अच्छे खासे, राइट? दूसरा जो इसमें एक एज नहीं कहूंगा, दूसरा रीजन के आप शायद नहीं क्लियर कर पाएंगे, आपके लिए शायद टफ हो जाएगा, वो है कि अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, नो बैकग्राउंड. मतलब बैकग्राउंड नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स और समथिंग, बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ कि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही नहीं दिया है. You have never read even quant or reasoning or English or current affairs. Forget about phase 2. So it would be tough to do it in a limited time. And the third I would say is के देखिए, if I compare it with RBI or NABARD, here some of the subjects are technical. If I talk about commerce, ठीक है, commerce का subject है आपका, costing है, and even economics here is little bit technical, right? I hope आप शायद यहाँ पे कटे नहीं, नीचे बैनर आ रहा है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ. So these three subjects are technical. So these might be some of the reasons जिसकी वजह से I mean, you might feel that you will not be able to clear because these challenges will make it tough for you. But on the other hand, for somebody, it will not be tough. At the end of the day, it's all about mindset. ठीक है? तो tough क्यों नहीं है? मतलब अगर मैं दूसरी तरह से लॉजिक दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे, if I talk के CAs क्लियर करते हैं भैया, बहुत सारे लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, इवन इंजीनियर्स, राइट? मतलब 60 to 70% people from this background, non-commerce background, who are engineers. I remember one of my student, Hema Bindu, she was a pharmacist, right? And she cleared SEBI exam. Even SEBI panel was surprised that how do you know so much about insider trading and all in the interview. So ये वही है, mindset है, मेहनत है आप लोगों की. So non-commerce वाले भी clear करते हैं, that's a positive sign. बाकी अगर आपका background है थोड़ा बहुत, यार आपने कहीं पे बैंकिंग में ही क्वांट रीजनिंग पढ़ा है, एटलीस्ट आपका फेज 1 का प्रिपरेशन तो बच जाएगा. थोड़ा करंट अफेयर्स पता है, ठीक है. इवन कॉमर्स वालों को यहाँ पे बहुत चैलेंज आता है क्वांट रीजनिंग में.
So even if you have not read anything for phase 2, but if you have already studied something for phase 1, that is going to give you some relief, I would say. और तीसरा जो ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इनका कोई तोड़ नहीं है. इट्स ऑल अबाउट दैट हाउ मच एफर्ट यू आर रेडी टू पुट इन. बट ऑल आई कैन टेल यू, दिस इज नॉट इजी, बट दिस इज ऑल्सो नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड. अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, इनिशियली इट वुड बी टफ, इनिशियली वुड बी चैलेंजिंग. But if you study subjects like commerce and costing, say for first 10-12 days, you will be able to pick the tempo, and these are very logical subjects. यहाँ पे कोई रट्टा नहीं है, कोई आपको ज्यादा रिवीजन नहीं करनी है. If you have understood the concepts, you revise it once, you are ready for the exam. तो यहाँ पे I would say managing your studies is the key. अब ये managing कैसे होगी? Now in my point of view, it all boils down to कि आप एफर्ट कितना लगाते हैं. एफर्ट इज द की प्लस द स्ट्रैटेजी. एफर्ट प्लस स्ट्रैटेजी, दीज आर गोइंग टू बी द टू की एलिमेंट्स टू मैनेज दिस टेक्निकल सब्जेक्ट्स. और इन दोनों के लिए मुझे लगता है जो सबसे क्रूशियल फैक्टर है वो है टाइम. बिकॉज इफ यू थिंक कि ये सब कुछ इतने टेक्निकल सब्जेक्ट्स में 30 दिन में पढ़ लूंगा, दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. टाइम चाहिए होगा, and that time should be utilized in proper effort from your side, in proper strategy from your side. Now time is a big question because we never know that when the notification will come, and by the time it gets cleared कि notification अब आने ही वाला है अगले 15 दिनों में, the time is too less. So ये हमेशा challenge रहेगा. I cannot help you out here, ठीक है, because आपको भी मैं समझ सकता हूँ एज एन एस्पिरेंट. आपको जब क्लैरिटी नहीं है, आपको लगेगा यार ये एग्जाम की, यार मैं तो वो एग्जाम की तैयारी करूं जिसकी क्लैरिटी है. सो यहां पे तो रिस्क रिवॉर्ड है, वो आपको समझना पड़ेगा. स्ट्रैटेजी आई कैन टेल यू, ठीक है, सिंपल एट अ हाई लेवल. तो यहां पे मेरे हिसाब से यू हैव टू पिक योर एरियाज. यू फर्स्ट पिक अप सब्जेक्ट्स व्हिच आर इजी लाइक मैनेजमेंट, फाइनेंस. कंपनी लॉ भी इजी है, दो इट इज फैक्चुअल एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, राइट. ये फेज 2 की बात कर रहा हूं मैं. And if you pick this subject, now this is also common with other regulatory bodies like RBI, Grade B. So it's not much of a risk. अगर सेबी नहीं आता, at least you are able to prepare for RBI through these subjects. तो ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए मेरे हिसाब से. मैनेजमेंट, कंपनी लॉ 30 डेज में यू कैन मैनेज, और करना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सेबी. बाकी 30 डेज में फाइनेंस एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, राइट. सो 60 डेज टू कवर मैनेजमेंट, कंपनी लॉ, फाइनेंस एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. इट्स नॉट ईजी. It's doable and you have to make it happen. That's the point I'm trying to make here. So this is about your first target, I would say. Pick your areas, pick these subjects, cover them up in next 60 days. That's a good thing. And then move out to these technical subjects which I told you, economics, costing and accounts. Now these subjects, in my opinion, if you want to do really well, if you want to do it at a level where you will be able to clear the exam, ये आपको सारे subjects में 30 days लगाने पड़ेंगे. 30 days for economics, 30 days for कॉस्टिंग एंड 30 डेज फॉर अकाउंट्स. ये लगाने पड़ेंगे बिकॉज ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि दे डिमांड टाइम. यू वुड हैव टू रीड सम थिंग्स अगेन, यू वुड हैव टू डिवोट टाइम, मे बी समटाइम्स 15-20 minutes just on one page, because sometimes you can get stuck in these technical chapters. बट घबराइए मत, बेसिक्स क्लियर होंगे तो बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. इकोनॉमिक्स की बात करूं तो यहां पे पहले टारगेट अपना रखिएगा आप ये वाला, नीचे वाला पार्ट बी. दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली. दिस इज माइक्रो, दिस इज टफ. हियर टॉपिक्स लाइक नो कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर, ISLM, these are bit technical chapters. So your first target should be cover the macro, balance of payment, foreign exchange markets, inflation, monetary and fiscal policy, and non-banking financial institutions. This shall be your first target. ये पूरा हो गया और ये जल्दी हो जाएगा, because I'm sure if you're preparing for SEBI, you would have studied these chapters somehow here or there in your other exam preparation. टाइम लगेगा ऊपर वाले पे, बट वो करना है, उसको छोड़ के नहीं जा सकते. बट बहुत डेप्थ में मत जाइएगा. बेसिक्स विद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग is going to help you out. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो मुश्किल आएंगे देखिए, बट वो काफी लोग नहीं कर पाते हैं. जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनमें से भी काफी लोग नहीं कर पाते. सो सबसे पहला टारगेट बेसिक्स विद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. फिर बात आती है कॉस्टिंग की. ना कॉस्टिंग इज ऑल्सो वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, और ये जो तीनों सब्जेक्ट है ना, मतलब कॉमर्स या कॉस्टिंग या इकोनॉमिक्स, दीज आर नॉट फॉर फेंट हार्टेड. अगर ड्रीम यहां करना है और मेहनत यहां करनी है, देन यू आर नॉट इन लाइन विद व्हाट यू आर ड्रीमिंग, राइट. अब ड्रीम छोटा कर लो, फिर एग्जाम टारगेट करो SSC, पर ड्रीम बड़ा है तो फिर एफर्ट बढ़ा लो, एंड विद राइट स्ट्रैटेजी. तो कॉस्टिंग भी आसान नहीं होने वाला है, एंड लिटरली एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर. फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर मोर और लेस ऑन द बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग.
द रियल चैलेंज विल कम इन द थर्ड यूनिट, जो यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और बजट एंड बजटरी कंट्रोल है. दीज कॉन्टेन्स लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स. यू वुड हैव टू स्पेंड टाइम हियर, बट न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बेसिक आते हैं, तो बेसिक कंसेप्ट्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू हैंडल दैट. फोर्थ इज लीन सिस्टम एंड इनोवेशन. और दिस इज अ केक वॉक. कॉस्टिंग में आई ऑलवेज से, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल तोते उड़ चुके हैं सर, टाइम ही नहीं मिल रहा है. 30 डेज दिए थे लेकिन उसमें आधा ही हुआ है. तो जो भी ये वाला है ना, ये कर लो, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन. दिस इज प्योर थ्योरेटिकल. This does not have any dependency on the first 3 units, and even if you do this, you will be in good hands. You will be in good hands because यहां से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे इस यूनिट से, और आप कर पाएंगे अगर आप इसको पढ़ के गए हैं. The next one is commerce and accountancy. ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है तीनों में. ठीक है, आई टोल्ड यू कि इसको 30 डेज लगेंगे, शायद 40 डेज भी लग सकते हैं, और वो तभी आप कर पाएंगे इफ यू स्टार्ट नाउ. तो इसको अच्छे से करना है. और इसमें ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर फिक्स्ड एसेट. ये अभी डेप्रिसिएशन सिलेबस में चल रहा है, बट इट्स नेम हैज बीन चेंज टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर फिक्स्ड एसेट. तो ये करना है. इन्वेंट्रीज भी करना है हमें. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट सारे हैं, बट द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी फिक्स्ड एसेट. ये वाला मतलब डेप्रिसिएशन अभी फिक्स्ड एसेट में ही आ गई है, एंड योर इन्वेंट्रीज. एंड देन दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. ये आप छोड़ सकते हैं शायद, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन थोड़ा बहुत यहां से कम ही आता है. बाय बैक भी जरूरी है. और ये जो डी और ई यूनिट है, बोनस, राइट्स और बाय बैक, हियर दे विल आस्क यू मोर और लेस ऑन द रेगुलेशंस, दैट व्हाट इज द लिमिट ऑफ बाय बैक, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ बाय बैक, इन विच बाय बैक नीड्स टू बी कंप्लीटेड. तो जो वो रेगुलेशंस हैं, either given by SEBI or mentioned in the company law, they becomes very very important for you to study. और ये चैप्टर तो है ही इंपॉर्टेंट भैया, मतलब ये सारे आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसका एक निचोड़ है एंड में जाकर. सो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल कंपनी अकाउंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें कुछ बेसिक चैप्टर्स आप पढ़ लीजिएगा. यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट इन दिस ऑर्डर. बेसिक चैप्टर्स लाइक डेबिट क्रेडिट, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, ट्रायल बैलेंस, यू वुड हैव टू रीड दोस चैप्टर्स. वो किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएंगे. और ये क्यूआरई और करंट अफेयर्स, आई वुड प्रेफर दैट यू स्टार्ट ओनली वंस द नोटिफिकेशन इज आउट. और अगर आपके इतने बुरे हाल हैं कि सर मुझे तो क्यूआरई पे ही 2-3 महीने लगाने पड़ेंगे, देन फॉरगेट अबाउट सेबी दिस ईयर, मे बी इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट. बट इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग अ गुड होल्ड ऑन क्यूआरई, तो इसको आप नोटिफिकेशन के बाद ही हैंडल कीजिएगा. आई डोंट थिंक गेटिंग 30 मार्क्स इज गोइंग टू बी बिग मच ऑफ अ ट्रबल. हाँ, जो कमर्स बैकग्राउंड वाले हैं लाइक सीएस एंड ऑल, दे आर ऑलरेडी गुड इन देयर कमर्स सब्जेक्ट्स, बट दे आर वेरी वीक इन क्यूआरई. करंट अफेयर्स से भी उनको रट्टा लगाने से काफी प्रॉब्लम होती है. सो दे माइट स्टार्ट अर्लियर बिकॉज दे हैव ऑलरेडी होल्ड ऑन सम सब्जेक्ट्स एंड दिस इज देयर वीक एरिया, सो दे नीड टू वर्क अपॉन हियर. बिकॉज आई हैव सीन many chartered accountants are not able to clear phase 1 paper 1, that is they are not able to get 30 marks there, though in paper 2 they might get 60-70. ठीक है, तो इस पे उनको ध्यान रखना है कमर्स वालों को. बाकी नॉन कमर्स वालों का अगर ये भी वीक है, then I think it would become very tough for them. So this is all from my side, and this is our guidebook for SEBI Assistant Manager, which gives you complete information about SEBI as an organization, SEBI में promotions क्या हैं, departments क्या हैं. It also gives you previous year papers of SEBI. It also gives you detailed syllabus of SEBI. It also gives you detailed book list of SEBI. So please download it for free. The link to download this is given in the description of this video. You will really enjoy reading it, and it will be that next dose of motivation that you would have always required to prepare for SEBI. So that's it from my side. Have a nice day. Bye bye. ठीक है गाइस, अगर करना है तो शुरू कर लो, नहीं करना है दैट्स अ सेपरेट थिंग, राइट. बाकी क्लैरिटी किसी को नहीं है. इट्स ऑल बेस्ड ऑन रिस्क एंड रिवॉर्ड नाउ. सो वो कॉल आपको लेनी है क्योंकि वो आपका करियर है. बाय बाय.